چیئرمین نیب کا شہر کی ترقی کے لیے وسائل کی فراہمی کا وعدہ۔ نیب نے کراچی کی 635 ایکڑ زمین مافیا سے بازیاب کرائی، 5 ارب کے زیور، گاڑیاں اور پراپرٹیز سندھ حکومت کے حوالے کی۔ چیئرمین نیب نذیر احمد نے وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کر دی۔ سرکاری زمین کے فراڈ کے خلاف مشترکہ کارروائی پر اتفاق۔ چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ مراد علی شاہ کا عوامی اثاثوں کی واپسی پر چیئرمین نیب سے اظہار تشکر۔ بازیاب زمین پارکس اور تفریحی مراکز کے لیے استعمال کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چیئرمین نیب کا شہر کی ترقی کے لیے وسائل کی فراہمی کا وعدہ ہے۔ نیب نے کراچی کی 635 ایکڑ زمین مافیا سے بازیاب کرائی ہے، 5 ارب کے زیور، گاڑیاں اور پراپرٹیز سندھ حکومت کے حوالے کی۔ چیئرمین نیب نذیر احمد نے وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کر دی۔ سرکاری زمین کے فراڈ کے خلاف مشترکہ کارروائی پر اتفاق۔ چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ کراچی کے بلدیاتی اداروں کو فروری کے لیے OZTT شیئر جاری۔ TMC اورنگی ٹاؤن کے لیے 6 کروڑ 33 لاکھ 19 ہزار، مومن آباد کو 7 کروڑ 13 ہزار، منگو پیر کو 12 کروڑ 69 لاکھ 2 ہزار مل گئے۔ TMC صدر کو 16 کروڑ 55 لاکھ 22 ہزار جاری۔ لیاری کے لیے 14 کروڑ 90 لاکھ 70 ہزار روپے منظور۔ اسی طرح سراب بورڈ کو 3 کروڑ 11 لاکھ 84 ہزار، سفورہ ٹاؤن کے لیے 4 کروڑ 9 لاکھ 15 ہزار جاری۔ گلشن ٹاؤن کو 6 کروڑ 12 لاکھ 57 ہزار، جناح ٹاؤن کو 7 کروڑ 62 لاکھ 68 ہزار جاری۔ چنیسر ٹاؤن کا 7 کروڑ 83 لاکھ 28 ہزار، ماڈل کالونی کا 8 کروڑ 99 لاکھ 29 ہزار شیئر۔ TMC شاہ فیصل کو 10 کروڑ 21 لاکھ 54 ہزار روپے جاری۔ رقم تنخواہوں، پینشن، نان سیلری اور ترقیاتی اخراجات کے لیے استعمال ہوگی۔ گل پلازہ میں آگ بچوں کے ہاتھوں فلاور شاپ میں لگی۔ کمشنر کراچی نے بھی گل پلازہ کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ متحدہ پاکستان نے رپورٹ مسترد کر دی، معاملے پر وفاق سے مداخلت کی درخواست کر دی۔ گل پلازہ کی مینیجنگ کمیٹی کا 34 سالہ قبل متعلقہ اداروں کو لکھا گیا خط بھی سامنے آ گیا، جس میں متعلقہ اداروں کی غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ مزید اس رپورٹ نے بڑے سانحے کو جنم دے دیا۔ گل پلازہ میں آگ بچوں کے ہاتھوں فلاور شاپ میں لگی۔ کمشنر کراچی نے بھی گل پلازہ کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ گل پلازہ کی مینیجنگ کمیٹی کا 34 سال قبل متعلقہ اداروں کو لکھا گیا خط بھی سامنے آ گیا۔ کمشنر اور ایڈیشنل IG کراچی پر مشتمل کمیٹی کی تیار کردہ رپورٹ میں کہا گیا کہ گراؤنڈ فلور پر موجود بچے کے ہاتھوں فلاور شاپ میں آگ لگی۔ آگ لگنے سے 69 اموات ہوئیں۔ زیادہ تر اموات گل پلازہ کے میزنائن فلور پر ہوئیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ آگ رات 10:15 پر لگی۔ 10:26 پر فائر بریگیڈ کو آگ کی اطلاع ملی اور پہلا فائر ٹینڈر 10:37 پر گل پلازہ پہنچا۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ ادھر متحدہ پاکستان نے رپورٹ مسترد کر دی۔ ممبر صوبائی اسمبلی فرحان انصاری نے معاملے پر وفاق سے مداخلت کی درخواست بھی کر دی۔ انہوں نے کوئی رپورٹ پیش کر دی ہے اور جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس رپورٹ کی جو وجہ ہے اس میں 2 بچے جو ہے وہ آپس میں ماچس سے کھیل رہے تھے، اس قسم کی کوئی جو ہے نامعقول قسم کی رپورٹ پیش کی ہے، تو میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور اس شہر کے باشعور لوگ سب سے پہلے تو اس مسترد کرتے ہیں اس رپورٹ کو۔ موجودہ اس شہر کی صورتحال کو اس کو سیدھا وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وفاق کو چاہیے وفاق انٹروین کرے، 18ویں ترمیم ختم کر کے اس شہر کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ جبکہ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے واضح کیا کہ رپورٹ کی روشنی میں اقدامات کیے جائیں گے۔ وہاں ان کے پاس اندر کوئی سہولت موجود نہیں تھی آگ بجھانے کی، اور وہ آگ جب بڑھ گئی، جب اوپر کے فلوروں پہ لوگوں کو خبر ہوئی تو اطلاع دی گئی، اس کو قابو کرنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے کام کیا گیا، لیکن وہ نہیں کارگر ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آگ پورے پلازا میں پھیل چکی تھی۔ اس لیے باقی جو اب رپورٹ آ گئی ہے، چیف منسٹر صاحب کا اختیار ہے کہ وہ اس رپورٹ کو مانیں گے، ریجیکٹ کریں گے۔ دوسری جانب گل پلازہ کی مینیجنگ کمیٹی کا 34 سال قبل متعلقہ اداروں کو لکھا گیا خط بھی سامنے آ گیا۔ دستاویزات کے مطابق پلازہ کی مینیجنگ کمیٹی نے 1992 میں شاپنگ سینٹر میں کسی بھی بڑے حادثے کی طرف نشاندہی کر دی تھی۔ 34 سال میں بھی متعلقہ اداروں نے نشاندہی کے بعد کوئی ایکشن نہ لیا۔ مینیجنگ کمیٹی نے خط میں متعلقہ حکام کی طرف سے رشوت وصول کیے جانے کا بھی اشارہ کیا تھا۔ سانحہ گل پلازہ کے بعد شہر بھر میں فائر اینڈ سیفٹی انتظامات پر سوالات اٹھنے لگے ہیں، جس کے بعد ضلعی انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی ہے۔ مختار کار اورنگی ٹاؤن سب ڈویژن نور زمان نے مختلف تجارتی مراکز کا دورہ کیا اور 1 ہفتے کی مہلت کے لیے نوٹس تقسیم کیے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔
है गुल प्लाजा के बाद फायर सेफ्टी इंतजामात कैसे किए जाएं। मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया हरकत में आ गई। मुख्तार कार औरंगी टाउन सब डिवीजन नूर जमान ने मुख्तलिफ तजारती मराकज का दौरा किया और एक हफ्ते की मोहलत के लिए नोटिस तकसीम किए। नूर जमान ने बताया कि बेशतर तजारती मराकज में फायर फाइटिंग आलात, इमरजेंसी अखराज के रास्तों और देगर हिफाजती इंतजामात की शदीद कमी सामने आई। एक हफ्ते का हम उनको टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि जहाँ पे कमी पेशियाँ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक हफ्ते के बाद जो है हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन के पास जाएंगे। और एक हफ्ते के बाद फिर जो सेकंड हमारा विजिट होगा वो 4 हफ्ते के बाद होगा। कॉटेज इंडस्ट्री की जहाँ पे आपने बात की, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इनकी मिसिंग हैं, तो हमने पूरे इनको प्रॉपर नोटिस भी जो है सर्व करवाए हैं और डायरेक्टिव्स दिए हैं कि ये चीज़ें आप कोशिश करके इंश्योर करें, क्योंकि ये सिर्फ उनकी हम और इंतजामिया जो बाद में वहाँ पे जो लोग बसते हैं, जिनका ये कारोबार है, उन्हीं की सेफ्टी के लिए जो है ये इक़दाम किए जा रहे हैं। टप्पेदार औरंगी टाउन सईद अहमद का कहना था कि इब्तिदाई मरहले में आगाही और मोहलत दी जा रही है, ताहम मुकर्ररा वक्त के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बनारस पे जो है ज़ैनब मार्केट है, वहाँ पे हम गए हैं। बदायूनी कागज के पास जो छोटी पश्तून मार्केट है, हम वहाँ पे गए, जहाँ पे 300 से 400 दुकानें हैं। और बड़ी मार्केट है, उसके पास 700 दुकानें हैं, वहाँ पे हम गए। हवा शॉपिंग मॉल है कस्बा मोड़ पे, उसके ऊपर हम गए, वहाँ उनको नोटिस दिए, उनको आगाही दी है कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर और सिक्योरिटी मेजर्स होनी चाहिए आपके पास। इंतजामिया के इस इक़दाम को शहरियों ने खुशाइंदा करार दिया है। ताहम सवाल यह है कि क्या मुकर्ररा मुद्दत के बाद वाकई सख्त कार्रवाई हो सकेगी। कैमरामैन नवीदुर रहमान के हमराह रिजवान अहमद, सिटी 21। सिटी 21 के खबर पर एक्शन। नाजिमाबाद नंबर 3 में 3 माह से पड़ा मलबा उठा दिया गया। मकीनों का इजहार इत्मीनान। जमात इस्लामी के रहनुमा फयाज ने टाउन की जानिब से सड़क की तामीर का भी यकीन दिला दिया है। रिमशा इस्माइल की ये रिपोर्ट। नाज़िमाबाद नंबर 3 में 3 माह से सड़क पर मलबा बिलाकर हटा दिया गया। पानी की पाइपलाइन की तनसीब के बाद सड़क खुली छोड़ दी गई थी। रिहायशियों ने आवाज उठाने पर सिटी 21 का शुक्रिया अदा किया। कहा कि 3 महीने से रोड खुदी हुई थी। 3 माह से हम लोग जलील और ख्वार हो रहे हैं। जमात काम कर रही है, मगर इसका तरीक़ेकार गलत है कि खोद के डाल रहे हैं और उसको बना नहीं है। भाई आप एक टुकड़ा खोदें, उसको बना दें, फिर आगे चले जाएं। ज़ईफ औरतें, ज़ईफ नमाजी बेचारे, उल्टी सीधी रोड, वो ऊंची नीची, कोई गिर रहा है, किसी को चोट, बाइक पे बच्चे जा रहे हैं स्कूल के, सबको चोटें लग रही हैं, गिर रहे हैं, कोई तकलीफ का किसी को एहसास ही नहीं है। जमात इस्लामी के रहनुमा फयाज का कहना है कि पानी की पाइपलाइन के लिए खुदाई की गई थी, बाद में मलबा नहीं हटाया गया। ये सड़क सिटी गवर्नमेंट के दायरा इख्तियार में आती है। हम कोशिश करेंगे कि अपने तौर पर भी इसकी तामीर करवा दें। ये वाटर बोर्ड की लाइन डलनी थी, जो काफी सालों से यहाँ पे गली में पानी नहीं आता था मौजूद। ये वाटर बोर्ड के करने का काम था, जो टाउन इंतजामिया कर रही है। इसी तरह से ये गली की तामीर का काम भी सिटी गवर्नमेंट का काम है। जाहिर है कि ये टाउन के डोमेन में नहीं है। शहरियों ने मलबा हटने पर इत्मीनान का इजहार किया है और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सड़क की मुकम्मल तामीर यकीनी बनाई जाए। शहर कायद में तरक्याती काम आवाम के लिए सहूलत के बजाय ज़हमत बनते जा रहे हैं। मलीर दरख्शा सोसाइटी में सड़क पर जारी तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। सड़क की खुदाई के बाद मलबा वहीं छोड़ दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और कारोबार ठप हो गया है। अक्सर शेख की ये रिपोर्ट। कारोबार बंद और गर्दो गुबार का तूफान। मलीर का तामीराती काम शहरियों के लिए जहमत बन गई। मलीर दरख्शा सोसाइटी में सड़क का तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है। खुदाई के बाद मलबा सड़क पर छोड़ दिया गया, जिससे गर्दो गुबार में इजाफा हो गया है और सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। सड़क की खस्ताहाली के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहने लगी है। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि धूल मिट्टी और बंद रास्तों की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है। खुदाई तो हो चुकी है, अब देखें कब तक बनता है। ये धूल मिट्टी तो है कराची। बस ये है कि थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया, माशाल्लाह बाकी तो पूरा गली हो गया ये वाला। अभी यहाँ का ये थोड़ा रह गया, पता नहीं पे और ब्लॉक कम हो गया होगा, कोई मसला हो गया होगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुताल्लिका इदारे फौरी तौर पर मलबा हटाएं और तामीराती काम मुकम्मल करके आवाम को रिलीफ फराहम करें। कि सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन BRT मंसूबे का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने और मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में तरक्याती मंसूबे जारी रखने का ऐलान। कहा शाहराह भुट्टो का 3रा मरहला जल्द मुकम्मल होगा। BRT रेड लाइन पर तेजी से काम जारी है। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं। कराची तरक्की करेगा तो मुल्क चलेगा। MQM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। सानिया गुल प्लाजा पर कमेटी ने चाहा तो जुडिशल कमीशन बनेगा। आजिज जमाली की रिपोर्ट।
सिंध हुकूमत का एक बार फिर रेड लाइन BRT मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का अज़म। शर्जील मेमन ने मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। मंसूबे के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डॉलर के नर्ख बढ़ने से BRT प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई है। ठेकेदार कंपनी ने काम रोक दिया था। काबीना ने इजाफी लागत की मंजूरी दे दी है। अब काम में तेजी लाई गई है। मार्च तक जिना एवेन्यू और यूनिवर्सिटी रोड के ट्रैक को क्लियर कर देंगे। मंसूबा मुकम्मल होने में 1.5 साल तक लग सकता है। मार्च तक जिना एवेन्यू का जो काम है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा पब्लिक के लिए। जब ये प्रोजेक्ट्स दिए गए उस वक्त डॉलर का रेट 160 रुपये था और फिर अब डॉलर का रेट आपको 275-80 रुपये तक पहुंचा। तो जाहिर है उसकी वजह से महंगाई भी जो है आसमान तक पहुंची। जहां पे हमारी उनसे लड़ाइयाँ हुई कि जो उनके जायज़ मुतालबात थे उसको काबीना ने मंजूरी दी, चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी और हमने उसको फिर काम रिज्यूम किया। अभी 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, ये काम दोबारा रिज्यूम हुआ है। सीनियर वजीर ने सानेहा गुल प्लाजा से मुतालिक MQM पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले सानेहे पर सियासत की जा रही है। MQM के मुतालबात गैर आईनी है। MQM की बात अगर विफाक नहीं मान रहा तो MQM के दोनों विफाकी वज़रा को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि गुल प्लाजा वाक़ये की इंक्वायरी रिपोर्ट इत्मीनान बख्श ना हुई तो जुडिशल इंक्वायरी करवाएंगे। वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वजीर हैं, तो दे दें वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा और बोलें कि वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। जो रिपोर्ट आनी है और मेरे ख्याल से अभी आ भी चुकी होगी, उस रिपोर्ट को देखें, उसका तयन करें और अगर आप समझते हैं, अगर वो कमेटी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है वो समझती है कि जुडिशल कमीशन कायम करना चाहिए तो जरूर कायम होगा। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि कराची तरक्की करेगा तो मुल्क चलेगा। सिंध के बजट का बड़ा हिस्सा कराची पर खर्च होता है। काबीना कमेटी सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। हुकूमत अपनी मर्जी से जुडिशल कमीशन बनाएगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, कराची। सोना आवाम की पहुंच से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर हो गया। एक दिन में फी तोला सोना 21,000 रुपये महंगा होकर 5.5 लाख से तजावुज कर गया। सोने की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने के बाद सराफा मार्केट में सन्नाटा छा गया। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। महंगे सोने ने आवाम के होश उड़ा दिए। सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। सोने और चांदी की कीमत में बड़ा इजाफा। आलमी मार्केट में सोना $211 महंगा होकर $5,293 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक तोला सोना एक ही दिन में 21,100 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोना मुल्क की तारीख में पहली बार 5,51,662 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। एक तोला चांदी 271 रुपये इजाफे से 11,911 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद सराफा मार्केट में सन्नाटा छा गया। सदर कराची सराफा ज्वेलर्स ग्रुप हनीफ शारजा का कहना था अवाम चांदी की तरफ मुतवज्जा हुए थे मगर अब चांदी भी महंगी हो गई है। नायब सदर महमूद जिलानी का कहना था कि आम खरीदार पीछे हट गए हैं जबकि सरमायाकार गोल्ड में सरमायाकारी कर रहे हैं। अवाम का कहना था कि सोना पहले ही पहुंच से दूर हो चुका था, अब तो इसका सोच भी नहीं सकते। मार्केट सोना खरीदने आया था मगर खाली हाथ ही जा रहा हूँ। हमारे तो होश ही उड़ा दिए इन लोगों ने यार, अब वापसी की तैयारी है बस। नहीं सोना अभी तो फिलहाल नहीं खरीद सकते यार। सोना तो अब खरीदना क्या, शादियों में भी एक दूसरे को दे नहीं पा रहे हैं। आप बरी में सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जाती है। महंगाई के बाइस अवाम की कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। इसी वजह से सराफा मार्केट में खरीदार नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 20। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स 177 पॉइंट्स इजाफे से 1,88,830 पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का मोहतात रवैया। 100 इंडेक्स में 177 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मजबूत रुझान पर हुआ। 100 इंडेक्स 177 पॉइंट्स इजाफे से 1,88,830 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,89,183 तक पहुंचा। माहिरीन के मुताबिक रोल ओवर वीक के बाइस मार्केट में उतार चढ़ाव बरकरार है और सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। जी देखिए, एक तो ये कि स्टेट बैंक ने जो है पॉलिसी रेट बरकरार रखा, इसका भी लोगों को तवक्को नहीं थी। इसको तवक्को थी कि लोग 0.5% 1% सोच रहे थे कम होगा, लेकिन कम नहीं हुआ।
लेकिन ये जो दूसरा उतार चढ़ाव मार्केट में है, इसका दूसरा इफेक्ट ये है कि ये जो वीक है, रोल ओवर वीक है, तो इसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा अपना जो सेटलमेंट है वो सेटल कर रहे हैं ताकि दूसरा माल खरीद सकें। तो ये इस हफ्ते जुमे तक शायद ये मार्केट इसी तरह चलती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। जबकि गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,88,202 पर बंद हुआ था। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 20। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच, कंज्यूमर कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। हाई कोर्ट में एनईडी यूनिवर्सिटी में पीएचडी इल्म के दाखिले की मंसूबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने मुतल्लिका फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने दाखिला मनसूखी के हुक्म को मुअत्तल और दाखिला बहाल करने की इस्तदा की। तुलबा यूनियन की बहाली से मुतालिक दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए रकम कोर्ट के क्लिनिक में जमा कराने का हुक्म दिया। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने तुलबा यूनियन के मुकदमात पर सख्त रिमार्क्स दिए। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में एसोसिएट प्रोफेसर की पेंशन वाजिबात से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। यूनिवर्सिटी के वकील की अदम हाजिरी पर अदालत ने फरीकैन से 18 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के मुताबिक रिटायरमेंट होने के बावजूद वाजिबात की अदायगी नहीं की जा रही। पाकिस्तान काटन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अफसरान की बरतरफी के मामले पर समाअत हुई। वजारत फूड सिक्योरिटी ने सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच को बरतरफी के अहकामात वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने शोकास नोटिस वापस लेते हुए मुलाजमीन की दरखास्त निपटा दी। सूबाई एंटी करप्शन अदालत में महकमा रेवेन्यू में जमीनों के रिकॉर्ड में जालसाजी के मुकदमे की समाअत हुई। गवाहों की अदम हाजिरी पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने केस की समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में नवाब ऑफ जूनागढ़ के खिलाफ वीडियो बनाने के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम मुदस्सर खान की जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक वीडियो इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान में खवातीन को दफातर, तालीमी इदारों और रोजगार के मकामात पर हिरासा करने के 1600 शिकायत दर्ज। हुकाम कहते हैं कि ये तादाद असल वाक़यात से इंतहाई कम है। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। मजाक नहीं, जुर्म है। खवातीन की इज्जत करना एहसान नहीं, फर्ज है। हर औरत को बगैर खौफ जीने का हक है। तालीमी और पेशा वराना इदारों में खवातीन को हरासा किए जाने के उन्वान पर जिना वुमेन यूनिवर्सिटी में सेमिनार। तालिबात को हरासानी के हवाले से आगाही दी गई। वफाकी मोहतसिब बराए हरासानी सिंध सबीका शाह का कहना था कि तालीमी और पेशा वराना इदारों में खवातीन को हरासानी की शिकायत बेइंतहा है, लेकिन खवातीन शिकायत करने से डरती हैं। कोई भी जिस्मानी हरासानी, कोई सेक्सुअल हरासमेंट जो है या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो आपके जिन्स के बेसिस पर हो, इसके खिलाफ इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 03444367 या आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं www.fospa.gov.pk। आप हमारे दफ्तर भी आके स्टेट लाइफ बिल्डिंग नंबर 11 में 3rd फ्लोर पे अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। सबीका शाह ने बताया कि गुज़िश्ता साल हरासानी की 1600 शिकायत मौसूल हुई, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वाक़यात हुए। खवातीन खामोश रहती हैं, रिपोर्ट नहीं करती। पिछले साल में हमारे पास टोटल 1600 कंप्लेंट्स आई थी, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत कम कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि सर्वे के मुताबिक 93% औरतें जो हैं वो सेक्शुअल हरासियत फेस करती हैं। तो ये 93% औरतें अगर कंप्लेन करती हैं कि काम की जगह पर वो हरासियत फेस करें, तो ये कंप्लेन का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता। इस मौके पर तालिबात ने भी हरासानी के खिलाफ मौसर आवाज़ उठाने के अज़्म का इजहार किया और कहा, महफूज मुस्तकबिल के लिए आज आवाज़ उठाना होगी। तकरीब के अख्ताम पर प्रोफेसर सुरैया कमर और दीगर में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन नवीद अहमद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में पहले कॉलेज लाइब्रेरियन सिंपोजियम का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद तलबा को अमली ज़िंदगी के तकाज़ों से आगाह करना है। सिंपोजियम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई फ्राहम की जा रही है। जुबैर राशिद की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट कॉलेज में सजा पहला सिंपोजियम। सीनियर चीफ लाइब्रेरियन आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज फरहीन महमूद और रबिया अली फरीदी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। मुंतजमीन ने कहा कि सिंपोजियम का मकसद लाइब्रेरी शोबे से मुतालिक आगाही फरहम करना था। ये आज जो हमने सिंपोजियम रखा है, ये अपनी नौइयत का पहला सिंपोजियम है। आज से पहले इस तरह का कभी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, लाइब्रेरियन हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्प्रिल की टीम और लाइब्रेरी इनोवेटर्स की टीम ने मिलकर ये सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाया तकमील तक पहुंचा। लाइब्रेरियनशिप को हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे और पब्लिक लेवल पे और वैसे भी बहुत प्रमोट किया जाता है, लेकिन जो कॉलेजेस का एरिया है वो थोड़ा सा इग्नोर होता है। तो आज इसका मकसद यही है कि जो कॉलेज लाइब्रेरियंस हैं उनको भी हम हाईलाइट करें, उनको भी हम प्रमोट करें, और इस सिलसिले में आदमजी कॉलेज का किरदार बहुत अहम है। प्रिंसिपल नासिर इकबाल व दीगर ने कहा कि तलबा के लिए मुख्तलिफ सिंपोजियम को यूनिवर्सिटी की तरह कॉलेजेस में आम कर रहे हैं। इसका मकसद जो है
ہمارے تمام لائبریرین کو جدید لائبریرین بنانا اور لائبریری کی جو اہمیت ہے تاکہ یہ لائبریرین جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ تک جو ہے یہ میسج جو ہے پہنچا سکیں اور جدید خطوط پر ان کی یہ ٹریننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس سمپوزیم کا مقصد جو ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے۔ طلبہ نے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ ماہرین سے براہ راست سیکھنے اور بات کرنے کا موقع ملنا خوش آئند عمل ہے۔ تھنکنگ اس سے بروڈ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ لرننگ اپروچ بھی ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں اور آدم جی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ اس طرح کی کیا نام ہے سیمینارز کرواتے ہیں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہت اچھا لگا ہمیں یہ سب دیکھ کے کہ آدم جی والے یہ سب ارینجمنٹ کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، ایسی ارینجمنٹ دیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمیں۔ سمپوزیم میں ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی، نجمہ سلطانہ، محمد یعقوب ارائیں، ڈاکٹر آمنہ خاتون، سید منور علی، عامر سبحانی، ڈاکٹر لیاقت علی راہو، ڈاکٹر فرحت حسین، اکرام الحق اور دیگر شامل ہیں۔ کیمرامین احمد حسین کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔